Sir, can you hear me? Hello. Yes, I hear you fine. Thank you. Oh, okay. So shall we start? Yes. Are you going to read the passage of scripture in a moment, or do we need to? Okay. Yes, we can. Okay, just a second. Let me begin it with another area. Good Okay. evening. I'm glad to be with you all tonight. आप सबको खुशामदीद और मैं आज आप सबके दरमियान आकर बहुत खुश हूँ. I found something that was written in the 1800s that was in a public school reader book. Sir, can you repeat that again, the last part? I found a insightful piece of material that was published in a school textbook from the 1800s. वो कहते हैं कि 1800 सदी में एक किताबचा लिखा गया था और मैं उसके अंदर से अभी कुछ हाल ही में पढ़ रहा था. And the statement is men wanted, but it could also be men or women wanted. और उसके अंदर लिखा था इंसान चाह सकता है या फिर मर्द और औरत क्या चीज चाह सकते हैं. And it reads as follows. Sorry? It reads as follows. और उसमें ये लिखा है Men wanted, men of thought, men of action. जो इंसानी सोच होती है वो जो मर्द की सोच होती है वो जो चाहता है वो जो करना चाहता है वो करता है. Men who are not for sale, men who are honest to their heart's core. जो मर्द होता है वो अपने दिल का सच्चा होता है, वो अपनी बात पर कायम रहता है. Men who can tell the truth and look the world and the devil right in the eye. वो सच्चाई से बात करता है और वो बातें जो वो करता है वो उस पर कायम रहता है. Men who neither stagger nor flinch. वो कभी भी अपनी बात से फिरता नहीं है. Men who have courage. वो शख्स जिसमें दलेरी है. Men through whom the current of everlasting life runs deep and still and strong. Sir, can you repeat the last part? Men through whom the current of everlasting life runs deep and still and strong. वो शख्स जिसके अंदर हमेशा की जिंदगी बहती है वो मजबूत रहता है और साबित कदम के साथ चलता है. Men who know their message and tell it. वो शख्स जो कलाम जानता है और वो आगे पहुंचाता है. Men who know their duty and do it. और वो शख्स जो अपना काम जानता है और वो उसे करता है. Men who know their place and fill it. वो शख्स जो जानता है कि मेरी खाल मेरा जिस्म क्या कर सकता है. Men who will not lie, men who are not lazy. I'm sorry, can you repeat that last part? Men who will not lie, men who are not lazy. वो शख्स जो झूठ नहीं बोलता, जो लेजी नहीं है, जो सुस्त नहीं है, काहिल नहीं है. We have a high calling for men and women who serve the Lord Jesus Christ. और वो कहते हैं हमारे पास उन लोगों के लिए एक बुलाहट है जो खुदावंत के पास जो मर्द और औरत आना चाहते हैं. And men and women of principle are at a premium in this age of expectancy. और वो ये कहते हैं कि आज के दौर में, इस दौर के अंदर ऐसे शख्स, ऐसे लोग बहुत ही कीमती हैं. When pragmatism becomes the ruling philosophy in society, it's rare to find those who don't cave in. और वो कहते हैं कि आज के दौर में जब एक ऐसे शख्स को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है जब दीनदारी अपने अरूज पे नहीं है. And in the days of Nebuchadnezzar the king. I'm sorry. And in the days of Nebuchadnezzar the king. और नबुकत नजर के दौर में जो बादशाह था, he signed a decree requiring all citizens to bow down at a certain time in obeisance before his image. अच्छा, उसने एक ऐलान जारी किया जिसमें कहा कि उसने एक बुत बनाया और सब लोगों में कह दिया कि इसके सामने झुकना है. And while most of the population yielded to the mandate, 3 Hebrew boys refused.
जबकि इस तमाम जो लोग थे उस वक्त उस बुत के सामने झुक जाते हैं जो एक उसने तैयार किया होता है, लेकिन उसमें सिर्फ 3 शख्स होते हैं जो Sha- कहते हैं हम नहीं झुकेंगे, Shadrach, Meshach, and Abednego. जिनसे आप सब वाकिफ है, सदरक, मीसक और अब्दुल नजूर। These three men were honorable, righteous, and just before God. ये 3 शख्स खुदा के हजूर मकबूल थे, वो खुदा को मानते थे और वो खुदा पर ईमान रखते थे। And through their lives and their yieldedness, God changed the kingdom. और उनकी जिंदगी के वसीला से खुदा ने उनकी जिंदगी में अपनी बादशाहत को जाहिर किया। Now you can read Daniel chapter 3, verses 14 to verse 25. और दानियल की किताब उसके तीसरे बाब और उसकी 14वीं आयत से हम 25वीं आयत की तिलावत करेंगे। कोई भी रहनुमाई करे। दानियल की किताब तीसरा बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक की तिलावत। अगर तुम मुस्तहिद रहो कि जिस वक्त करना और न्याय और सतार और रबाब और बरबत और चुगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिर कर सिजदा करो तो बेहतर, पर अगर सिजदा ना करो तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? सदरक और मेसक और अब्दुन्नजू ने बादशाह से अर्ज की कि ऐ नबूकत नजर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ऐ बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ऐ बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सिजदा नहीं करेंगे। आमीन। आमीन। Amen. These three men, they did not bow down before the king's edict. They did not budge and go against the word of God. ये जो 3 शख्स थे ये उस बुत के सामने सजदा रेज नहीं हुए जो उस वक्त के बादशाह ने उनके लिए हुक्म जारी किया था। And the church today needs men and women who will stand up. और आज अगर हम कलीसिया की तरफ नजर रखें तो आज भी हम यही चाहते हैं, खुदा यही चाहता है कि खुदा उससे हटकर कोई दूसरे को सजदा ना करे। And men and women who stand up for the cause of Jesus Christ. और उन शख्स को चाहता है जो खुदा के लिए, उन लोगों को चाहता है, उन मर्द और औरत को चाहता है जो खुदा के लिए खड़े होने वाले हों। If you were to go back in verse 7, it says all the people, when certain music was played, they all bowed down before the golden image. और अगर हम इसी की 7वीं आयत में देखें तो जब साज बजाए जाते हैं, जब आवाजें सुनाई देती हैं तो सब लोग सजदा रेज हो जाते हैं। But these three refused because they had conviction in their heart about the word of God and the will of God. लेकिन ये 3 जो शख्स होते हैं ये मना कर देते हैं उस बुत के सामने झुकने से, क्योंकि उनके दिल में खुदा के लिए बुलाहट होती है। And you and me, we have to be men and women of conviction where we understand the truth of what God's word says. और मुझे और आपको ऐसे शख्स बनना है जो खुदा की कुर्बत में आने वाले हो सके, जिसको पता हो कि खुदा हमसे क्या चाहता है। And conviction comes as you are yielded to the Holy Spirit who resides within you as a child of God. और ये इसी वसीला से आ सकती है जब मुझे और आपको मालूम हो कि खुदा हमारी जिंदगी से क्या अपनी मर्जी को रखता है। And conviction comes as you daily walk in obedience and adjust yourself to the will of God. और ये इसी तरीके से आ सकती है कि जब हम खुदा के साथ हर रोज उसके साथ चलने वाले हो सके। And when you are men and women of conviction, your life is based on the word of God, not the opinions of others.
और जब मैं और आप एक ऐसे मर्द और औरत बन जाएंगे जो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, तो फिर खुदा भी हमारी जिंदगी में बड़े काम करेगा। And we never win popularity contests by standing up for the word of God. I'm sorry. We will never win a popularity contest by standing up for the word of God. और ये नहीं कि हम यहाँ पे सिर्फ एक पॉपुलर होने के लिए कि हम खुदा की हजूरी में अगर कोई काम करेंगे तो हम पॉपुलर हो जाएंगे, नहीं। But men and women of conviction, they always stand up for their beliefs. लेकिन जो मर्द और औरत जो खुदा पर यकीन रखते हैं वो अपने ईमान के लिए खड़े होते हैं। आमीन। And not only do men and women of principle stand up, they also speak up. जो असूल परस्त मर्द और औरत होते हैं वो खुदा के लिए खड़े होते हैं। See, when Nebuchadnezzar had sent forth this edict that everyone bows down, लेकिन नबूकदनजर ने उस वक्त ये हुक्म जारी किया था कि सब लोग उस बुत के सामने झुकने चाहिए। the Chaldean politicians and rulers, they informed the king about the Hebrew boys' rebellion. उस वक्त के जो वो होते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो उससे कहते हैं कि इधर 3 शख्स हैं जो उसके सामने नहीं झुके। And Nebuchadnezzar was outraged. और जो नबूकदनजर होता है वो गुस्से में आ जाता है। And he said, bring these boys before me, and I want to talk to them. I want to set them straight. और वो कहता है कि उन लोगों को, उन 3 लोगों को मेरे पास लेकर आओ और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। And after the king interrogated them and gave death threats to them, Shadrach, Meshach, and Abednego answered with unflinching declaration. और वो जब उनसे बात करता है, सदरक से, मीशक से और अब्दुल अजूद से बात करता है, तो वो उनको डिक्लेयर कर देता, उनकी मौत को कह देता कि इनको अब आग की भट्टी में डाला जाए। And they spoke plainly, and they were unflinching before the king. Can you repeat it again? They spoke plainly and were unwavering before the king. और वो उसके सामने, बादशाह के सामने डरे नहीं, बिल्कुल सुकून से उन लोगों ने बात की। And they said, we will not serve thy God. और उन्होंने कहा कि हम तेरे खुदा को नहीं मानेंगे, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे। See, these 3 Hebrew boys, they were slaves, and they spoke to the highest authority of the land. अरे जो 3 यूनानी शख्स होते हैं ये उस वक्त के सबसे बड़े ओहदेदार से बात कर रहे थे। Their faith meant more to them than their very life itself, and they stood upon the word of God and they spoke the will of God. और ये उस वक्त डरे नहीं, बल्कि उन्होंने जो खुदा उनसे चाहता था वही कलाम उससे किया। And in an age of unbridled accommodation, we need courageous men and women who are compelled to speak up the truth. और आज का जो खराब दौर है इसके अंदर हमें ऐसे ही शख्स चाहिए, ऐसे मर्द और औरत चाहिए जो सच्चाई से कलाम करने वाले हों। And so you find these Hebrew boys, they were speaking up. These men of principle, they were standing up. And these men of principle, they stand out. और ये वही शख्स थे जो उस वक्त उनका ईमान डगमगाया नहीं, वो अपने जो सच्चाई से उससे फिरे नहीं, बल्कि जो खुदा उनसे चाहता था उन्होंने वो किया। Nebuchadnezzar said, heat this furnace 7 times hotter than it's ever been heated before. और नबूकदनजर ने कहा कि आग को 7 गुना और बढ़ा दो। And it says in verse 23, they were bound, Shadrach, Meshach, and Abednego, and cast into the burning fire. और 23वीं आयत में लिखा है कि सदरक, मीशक और अब्दुल नजूद को बांधे हुए उस आग की भट्टी में फेंक दिया जाता है। And the king and all his henchmen that were with him, as they looked into the blazing fiery furnace, they were amazed. और वो जो बादशाह होता है और बादशाह के साथ जो लोग होते हैं वो जब उस आग को देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं कि आग बहुत ज्यादा तेज है। Because they cast 3 men in, but they saw 4 men loose walking about. क्योंकि जब वो उस आग में नजर करते हैं तो उनको दिखता है कि उन्होंने तो सिर्फ 3 शख्स फेंके थे, लेकिन इधर तो 4 नजर आ रहे हैं।
And the fire could not hurt them. And the only thing that burned was the ropes that bound them. They were free and delivered. और आग उनका कुछ बिगाड़ नहीं रही, लेकिन जो चीजें जली वो बस उनकी रस्सियां थी, बाकी उनके ना जूते जले ना उनके कपड़े जले। And on top of that, the fourth man, it said, was like the Son of God. और जो चौथा शख्स जो उनको नजर आता था वो उनको खुदा की शक्ल, खुदा का बेटा नजर आता था। And it's amazing that Jesus did not get them out of the fire. He got in the fire with them. और ये कितनी ही खूबसूरत बात है कि खुदावंद यीशु मसीह उनको आग से बाहर लेके नहीं आया, बल्कि उनके साथ आग में चला गया। आमीन। Amen. But we are men and women of principle under Christ. जो हम मर्द और औरत हैं खुदावंद यीशु मसीह के, तो उसके साथ हमें कुछ कीमत भी भरनी पड़ेगी। When we stand up and we speak up for the kingdom of God and for the word of God. अगर हम उसकी बादशाही के लिए अपनी आवाज को उठाएंगे, It may be costly and it may be unpleasant, but we will stand out for the glory of God. हो सकता है हमें इसकी कीमत अदा करनी पड़े और ये कीमत काफी खासी महंगी होने वाली हो, लेकिन हम खुदा के लिए आवाज उठाएंगे। And what would have been greater, being delivered from the mouth of the fiery furnace, और क्या ही खूबसूरत बात होगी कि हम उस आग की जलती हुई भट्टी में से बाहर आए। आमीन। or being delivered in the midst of the fire itself. और उस आग की भट्टी में से हम निकले। And Nebuchadnezzar, he came forth to the edge of the furnace and he drew near and he said, these are servants of the Most High God. और जब नबूकदनेस्सर ने ये देखा तो वो उस आग की भट्टी के पास जाकर कहता है कि बेशक ये सबसे ऊंचे खुदा की प्रस्तिश करते हैं। आमीन। Their hair was not singed and their garments did not smell like smoke. Can you repeat the last part again? The hair was not singed and their garments did not smell like smoke. और उनके बाल नहीं जले और उनके कपड़ों से जलने की खुशबू भी नहीं आ रही थी। And Nebuchadnezzar was so moved by what took place, he changed his own decree. He changed what was going on in the kingdom. और जब नबूकदनेस्सर इस तमाम वाक्य पे नजर करता है तो वो उसका नजरिया बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है। And his idolatrous image was trashed, and the Hebrews' God now would be the only one worshipped. और वो कहता है कि बेशक इन शख्स को जिनकी ये पूजा करते हैं ये सबसे अजीम खुदा है। हमें Wouldn't that be a glorious day in America or Pakistan? क्या ही खूबसूरत बात हो कि यही ग्लोरी हमारे अमेरिका में या पाकिस्तान में भी होने वाली हो। See, in these three, they stood out because they refused to compromise the word of God, the will of God, the plan of God. वो कहते हैं कि ये तीन शख्स इसलिए बचा लिए गए क्योंकि इन लोगों ने खुदा के कलाम के लिए अपनी जिंदगी का भी दरेग ना किया। Because Shadrach, Meshach, and Abednego, men of principle, क्योंकि ये तीन शख्स असूल परस्त शख्स थे। they dared to stand up, to speak up, and consequently they stood out among everyone. और ये खड़े हुए, ये खुदा के लिए खड़े हुए और उन लोगों ने उन बादशाह के उस हाकिम के साथ कलाम किया। And in America especially, we need men and women who are blind to the winds of culture. और अमेरिका के अंदर खास तौर पे हमें ऐसे लोग चाहिए जो आंखों पर पट्टी रख के, जिसे कहते हैं कि आंखें बंद कर कर खुदा पे भरोसा करने वाले हों। We need men and women and youth who only pay attention to the wind of the Spirit of God. हमें ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग जो खुदा की काम को बेहतर तौर पे करने वाले हो सके। We need people of character with a zeal for the glory of God. हमें ऐसे शख्स चाहिए जो एक अच्छी तरबियत रखते हैं ताकि वो खुदा के कलाम को, खुदा को लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। And my question to you, will you be that man? Will you be that woman? और मेरा आपसे सवाल है, क्या आप वो शख्स होंगे, क्या आप वो मर्द होंगे या क्या आप वो औरत होंगी? Because that's what we need in America. क्योंकि यही शख्स है जो हमें अमेरिका में भी चाहिए। And I believe that's what you need in Pakistan.
और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी इन सब की जरूरत है। Years ago, there was a song written in America. It is not a Christian song. और कुछ सालों पहले अमेरिका में एक क्रिश्चियन सॉन्ग लिखा गया था, एक गीत लिखा गया था। But the title was Live Like You Were Dying. उसका जो टाइटल था वो ये था कि या तो तेरी तरह रहना है या तो मर जाना है। And even though it's not a Christian song, it has a great Christian concept. वो कहते हैं हालांकि ये एक मसीही गाना नहीं, मसीही गीत नहीं था, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट था, इसका जो नजरिया था, वो मसीही नजरिया था। The lyrics spoke of loving deeper, speaking sweeter, forgiving one another. उसके जो अल्फाज थे उसमें ये कहा गया था कि एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है और एक दूसरे को माफ करना है। And the final thought of the song was, someday I hope you get the chance to live like you are dying. और जो आखिरी अल्फाज होते हैं उस गीत के, उसमें लिखा है कि किसी दिन काश कि मैं तेरी तरह रहूं या तो मैं मर जाऊं। And the main point is the importance of living on purpose for the kingdom of God. और जो एक अहम नजरिया वो ये है कि हमें खुदा की बादशाहत के लिए रहना है। You move through life with a sense of urgency based on something bigger than yourself, based on something bigger than the pursuit of pleasure. और हमें उस चीज के लिए तैयार होना है जो हमसे बड़ी है, हमारी जिस्मानी ख्वाहिशात से बड़ी है। You see, in the Bible, we are called to present our bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God. और खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें एक ऐसी कुर्बानी बनना है जो जिंदा हो, पाक और खुदा को पसंदीदा होने वाली हो। And this sacrifice was going to be consumed by fire. It would be burned down to nothing but ashes. और ये जो कुर्बानी होगी ये आग से जलाई जाएगी, जो डायरेक्ट खुदा के पास से आएगी, आसमान से आएगी। And see, we need to learn to live like Sir, can you hear ashes. me? Yes. We need to learn Okay. to live as if we were ashes. और हमें ऐसे रहना, हमें सीखना पड़ेगा कि जैसे हम आग जलने के बाद वो जो ऐश रह जाती है, जो उसका गंध रह जाता है, उसकी तरह। And ashes, they're reduced down to completely nothing, and they can just be blown by the wind in the direction the wind is blowing. और वो ऐसी चीज होती है, वो राख जब उस पे हवा पड़ती है, वो हवा जिस जगह उसको उड़ा ले जाती है, वो उसी जगह चली जाती है। And that's the desire for my life, to live in such a fashion that the wind of the Spirit, when it blows, it moves me the direction I'm to be going. It moves in me and I'm yielded. और वो कहते हैं कि ये मेरी पर्सनल डिजायर है, ये मेरी सोच है कि मैं एक ऐसे राख की तरह बन जाऊं कि जब मुझे चाहे खुदा का पाखरू वो इधर उठा ले जाए, उधर उठा ले जाए, ताकि मैं उसकी खिदमत करने वाला हो सकूं। And if there was ever a time for the church of God and the people of Christ to catch a sense of urgency, the time is now. और वो कहते हैं कि अब वक्त है, आज वक्त है कि आप मसीह के पास आने वाले हो सके। And so I challenge you to be men and women of godly principle. मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको ये कहता हूं कि आप खुदा के बेटे और बेटियां बनने वाले हो सके। I challenge you, I encourage you, stand up for Jesus Christ. Speak up the truth of God's word. मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि आप खुदा के लिए खड़े हो, आप उसके लिए कलाम करने वाले हो सकें। And set the sails of your life to catch the wind of the Spirit when it blows, that God would use us where we are for His kingdom, for His glory. Hallelujah. Amen. वो कहते हैं कि मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि आप उसके लिए बोलें, ताकि जब खुदा की हवा आपको उठा ले जाए, जहां पर भी आपको खिदमत का मौका मिले, आप उसकी खिदमत करें। सब बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. Let me pray for you. मुझे अपने लिए दुआ करने दे। Heavenly Father, I thank you for my friends in Pakistan. आसमानी बाप, मैं तेरे शुक्र करता हूं अपने दोस्तों के लिए पाकिस्तान में। Father, I pray that you enable them, Father, by the sensitivity of your Holy Spirit, God, to speak into their hearts
your truth and let them yield, Father, daily to your word. आसमानी बाप, मैं चाहता हूं कि तू इनमें अपने पाकरू को ला, और ताकि ये जिंदगी में हर रोज तुझे जानने वाले हो और तुझ में बढ़ने वाले हो सके. Guide them, use them, Father, and allow them, Father, to understand your glory, your kingdom come in Jesus' name. इनको गाइड कर, इनको अपने कलाम को समझने की, अपनी खिदमात को समझने की बेहतर तरीका अता कर, ताकि ये तेरी बादशाहत में बढ़ने वाले हो सके, यीशु के नाम. Amen. Amen. Thank you. God bless you. Okay, sir. Amen. Amen.